हेलो स्टूडेंट्स, चलो तुम्हारा आज मैथ एग्ज़ाम के लिए और कुछ क्वेश्चन आंसर्स कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करते हैं ताकि तुम्हारे एग्ज़ाम में इस टाइप का नंबर आ जाए तो तुम्हारा मार्क श्योर हो जाए। ठीक है, तो पहला नंबर इस टाइप का है। देखो, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए x डिग्री है, एंगल बी 3x - 2 डिग्री है एंड another data is given, that is C, angle C minus angle B is 90. So you have to find out sum of greatest angle plus smallest angle is how much. सबसे बड़ा एंगल एंड सबसे छोटा एंगल का सम क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो C एंगल क्या होगा, एंगल C, ये तीनों मिला के 180 पता है, तो 180 माइनस x प्लस 3x - 2 समझ में आ गया। ये दोनों एंगल को मिला दिए और 180 से माइनस कर दिए तो ये C एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी हद तक रिवीजन भी खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो C के बदले हम ये लिखेंगे, क्या है देखो, 180 माइनस x प्लस 3x 4x माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 182 माइनस 4x। ठीक है, अभी इसको प्रोसीड करते हैं। एंगल C क्या है, ये वाला 182 माइनस 4x। एंगल B क्या है 3x माइनस 2। देखो एक साथ दो टर्म है और इससे आगे माइनस है, इसीलिए ब्रैकेट डाल के माइनस लिखे हैं। ये गलती मत करना, ब्रैकेट डाल के लिखना 182 माइनस 4x। अभी माइनस को निकाल देंगे और सब साइन चेंज कर देंगे, चेंज हो गए। ठीक है, देखो 182 प्लस 2 184 माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x इक्वल टू 9। ठीक है, ये 9 डिग्री है, तो 184 माइनस 9, इस 9 को ये इधर ले आए, 7 इसको उधर ले जा रहा हूँ कि ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा। 184 माइनस 9 175 इक्वल टू 7x। ओके, सो व्हाट विल बी द x इक्वल टू 175 बाय 7, दैट इज 25 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 75 डिग्री 25 डिग्री। ठीक है, अभी एंगल B क्या होगा 3x माइनस 2, मतलब 3 इंटू 25 माइनस 2 75 माइनस 2 73, ये हो गया 73, ये हो गया 73, ये हो गया 25। तो C क्या होगा, C देखो क्या हो गया 182 माइनस 4x 182 माइनस 4 इंटू 25 मतलब 182 माइनस 100 82, ये हो गया 82। तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो गया ये वाला, सबसे छोटा ये हो गया, ये दोनों का सम चाहिए। ओके, ये कितना होगा, ग्रेटेस्ट एंगल हो गया 82, स्मॉलेस्ट हो गया 25, मिला के हो गया 107। ठीक है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन को चलेंगे। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से था। ठीक है, सेकंड नंबर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट the line segment joining the point P -3 2 and Q 5 7, okay, is divided by the y-axis, is divided, this is line segment is divided by the y-axis in the ratio
Yes, this has been asked. Okay, y-axis means only this is divided. If the point is point 3n is divided by the y-axis in the ratio, that's the line segment. The line segment joining these two. So -3, 2, this will be x1, y1. 5, 7, this will be x2, y2. Okay, and this is the y-axis, means the x coordinate will be 0. If it is intersecting in the y-axis, the point, then at that point the x-axis will be, the x coordinate will be 0. So the point will be 0, y. Okay. So which formula will be put here? The section formula. Do you know what is section formula? 0, y equal to how much? The line segment joining the point. Okay. The ratio is m is to n. Okay. So x2 m plus x1 n by m plus n. This is okay. This is 0. And the other term is, another term is y2 m plus y1 n by m plus n. This is the second term. Okay, you know it, the section formula. So we have to take the first one because we have the value 0 for the first term, first part formula. So I am taking the first one, x2m plus x1n by m plus n is equal to 0. Okay. So what is x2? x2 is 5 into m plus x1. x1 is -3 into n equal to 0 into m plus n equal to 0. Okay. So 5m minus 3n equal to 0. Okay. So 5m equal to 3n. If I am taking the minus 3n this side, it will be plus 3n. So I have to calculate the m is to m by n. I am taking this n this side and this 5 this side. The 3 will be in numerator and this 5 is multiplied here. It will come to denominator. So what is the ratio? 3 is to 5. Could you follow this one? Let me explain from the beginning once again. So this is the line segment. Okay. The line segment joining the point these two is divided by the y-axis in the ratio this. We have to find out the m into n ratio. The ratio is m is to n. So I am calculating this in the ratio by the section formula, and section formula is like this. Okay, the value is this 0 and y, because the point intersecting at y-axis has x coordinates 0. So I am taking this one because I have got the value 0 for the first part. So I am taking this part formula as 0, because here I have the possibility of getting this m is to 1 in the more percentage. Okay, most probability of getting this one. That's why I am taking this one, because in the another part y is unknown here. So I am taking the first part in the beginning. Okay. So in this way I have got the answer m is to n is 3 is to 5. Okay. After proceeding this one, x1 y1 x2 y2. Okay, this is x5. I have the x value 0, so I am taking this part as 0, putting the x2 x1 value here.
I got this value as 3:5. Okay. So चलो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं. Is from geometry person. If the perimeter of a circle okay, is half that of a square, is half of that of half that of a square, half that of a square. Okay, this is given. Ratio of area. Find the ratio of area. Ratio of area. Ratio of area of the circle to the square. Circle to the square. Okay. So we have to calculate the ratio of the area of circle to the square. Okay. What is given? First, understand the question properly. Perimeter of a circle. Okay. So perimeter of a circle is equal to perimeter of circle 2 pi r, and perimeter of circle is half that of a square. Perimeter of a square equal to 4a. Okay. So according to question, what is given? 2 pi r is equal to half of 4a, half that of a square. Okay, half that of a square. This means 2 pi r equal to how much? 2a. 2a. Okay, again 2 cancel. Pi r equal to a. Okay, let the value remaining here. Let's proceed. चलो इसको यहाँ रहने देते हैं और आगे इसको कोशिश करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए. एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर is how much? Area of circle pi r square. Area of square a square. Okay. Ratio of area of circle to the square. Okay. So what is a? Pi r square by a square means pi r whole square. A is equal to pi r, so a square is pi r square. Okay. So pi r square by pi square r square. R square cancel, pi cancel. 1 by pi. I got the value 1 by pi. Pi is value 1 by 22 by 7. So it will be reverse, because 1 by 22 by 7 it means 72 by 7 by 22. That is 7:22. Okay. So put here area of circle pi r square हो गया, area of square a square हो गया. a का वैल्यू क्या है? pi r. तो यहाँ pi r डाल दिए. a square है मतलब pi r square square. pi r का स्क्वायर क्या है? pi square plus r square. r square कैंसिल हो गया. यहाँ 1 pi है, यहाँ 2 pi है. pi into pi है, 1 कैंसिल हो गया. तो बचा यहाँ 1, यहाँ pi. तो 1 by pi. pi का वैल्यू 22 by 7. तो लिख दिया 1 by, एक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसे उल्टा हो गया. 7 by 20 हो गया, 7:22 हो गया. ठीक है. नंबर 4 को चलते हैं. ये थर्ड नंबर कैंसिल हो गया, कंप्लीट हो गया. ठीक है. नंबर 4.
नंबर 4 क्या है देखो, इन एपी से एपी SN इक्वल टू 3n² + 5n, ठीक है, एंड TK इक्वल टू 164। फाइंड की हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो SN गिवन अगर होगा तो TN कैसे निकलता है, TN TN SN माइनस SN माइनस 1, ये फॉर्मूला है, इसको तुमको याद रखना है, ठीक है। तो SN माइनस 1 क्या होगा, SN 3n² + 5n है, माइनस SN माइनस 1 क्या होता है, देखो n के बदले हम n माइनस 1 पुट करेंगे, 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर, n स्क्वायर है तो n माइनस 1 होल स्क्वायर डालेंगे, प्लस 5 इंटू n के बदले क्या डालेंगे, n माइनस 1। n माइनस 1 कैसे निकलता है, n की जगह n माइनस 1 डालना है, n स्क्वायर मतलब n माइनस स्क्वायर, n मतलब n माइनस 1, ठीक है। अभी देखो 3n² माइनस प्लस 5n माइनस ये क्या हो गया 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2n, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस इसको कंप्लीट कर देते हैं, 5 से इंटू कर दिया, 5n माइनस 5, 3n² प्लस 5n माइनस देखो 3n² प्लस 3 माइनस 2n प्लस 3 माइनस 6n, ठीक है, 3 से इंटू कर रहा हूँ, प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। अभी निकाल देता हूँ, 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 3 माइनस प्लस 3, ये अंदर का हर टर्म का एवरी टर्म का इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, माइनस को ब्रैकेट को निकाल रहा हूँ, -3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5, ठीक है। देखो 3n² माइनस 3n² कैंसिल हो गया, प्लस 5n माइनस 5n कैंसिल हो गया, क्या बचा 3n 6n प्लस 2 प्लस 5 है माइनस 3 है, क्या होगा ये बच गया है, ये दोनों बच गए हैं, 6n और ये -3 है, ये प्लस 5 है, प्लस 2, ठीक है। अभी देखो TK निकालेंगे, ठीक है। देखो T1 कितना हो गया, 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 8, T2 कितना हो गया 6 इंटू 2 प्लस 2 14, अभी D क्या हो गया 14 माइनस 8 6, T2 माइनस T1 और A2 माइनस A1, ओके। नाउ TK इक्वल टू 164 गिवन है, इसका मतलब A प्लस और इस A ये यही A है नहीं, K माइनस 1 इंटू D इक्वल 164, ये कितना है 8 प्लस K माइनस 1 इंटू D कितना है 6 इक्वल टू 164, ठीक है। अभी K माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8 कितना हो जाएगा 156, ओके। देखो अभी K माइनस 1 कितना होगा 156 डिवाइडेड बाय 6, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड हो रहा है, 6 2 जा 12 3 6 6 6 जा, ओके। अभी K 26 है, ये -1 इधर आ जाएगा, कितना हो गया 27, K का वैल्यू 27 है, ठीक है। और एक नंबर करेंगे,
ये ट्रिग्नोमेट्री से है, तो पांचों अलग अलग चैप्टर से हम कवर अप करेंगे ताकि तुम्हारे कोई भी चैप्टर आ जाए तो उसमें तुम छांट के 5 में से मिनिमम 3-4 तक कर सकते हो। नंबर 5 डालते हैं। देखो एक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर, ये लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन के अंदर गिर चुका है एक बार। 1 + cot square a इक्वल टू 1 - 10a, डबल आरएचएस है 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। इसको प्रूव करना है। फिर से चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ओके। ये आरएचएस है, ये आरएचएस है, ये भी आरएचएस है। ओके, तुमको 2 बार प्रूव करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कोई भी। ओके, कौन सा स्टार्ट करेंगे? देखो एलएचएस ले लेते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + cot square a क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है? sec स्क्वायर ए नहीं, क्योंकि sec स्क्वायर ए - 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पता है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होगा? ये अगर इधर ले लेते हैं प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर ए क्या निकला? sec स्क्वायर ए। लिख रहा हूं मैं sec स्क्वायर ए। सिमिलरली तुम्हें पता है cosec स्क्वायर ए - cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 1 वाला फॉर्मूला हर वक्त माइंड में होना चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे। देखो तो 1 + cot स्क्वायर ये इधर ये जाएगा तो 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या होगा? cosec स्क्वायर ए। तो cosec स्क्वायर ए का वैल्यू 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? sec क्या है? sec 1/cos है। तो sec स्क्वायर ए को हम देखो sec स्क्वायर ए इंटू 1/cosec स्क्वायर ए। ठीक है, sec क्या होता है? 1/cos होता है, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्यों चेंजेस कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में 10 फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसको sec से सीधा 10 नहीं कर सकते, इसीलिए cos ले रहा हूँ क्योंकि sin/cos 10 आता है। 1/cosec क्या होता है? sin होता है। तो 1/cosec क्या होगा? sin स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अभी इसको देख लो। sin स्क्वायर ए ये ऊपर है, ये नीचे cos स्क्वायर ए है। sin/cos क्या होता है? 10 होता है। ये स्क्वायर फॉर्म में है तो क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। देखो आ गया, एक हो गया आरएचएस। ठीक है, तो इसको इसके साथ प्रूव कर लिया। ये एलएचएस ये आरएचएस के साथ हो गया। अभी इसको इसके साथ देंगे। ठीक है, अभी मिडिल का टर्म लेंगे और इसके साथ इसको या इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मिडिल को लेते हैं। मिडिल क्या है? देखो 1 - 10a/1 + 1 - cot a। ठीक है, हमको आरएचएस में क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो ये तो 10 है, इसको नहीं छुएंगे, इसको चेंज कर देंगे। कॉट का कैसे 10 होता है? कॉट का रेसिप्रोकल 10 है, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/10 है। वही लिख के कोशिश करते हैं। 1 - 10a। ठीक है, 1 - 1/10a। मेरे को खाली 10 चाहिए, इसीलिए इसको कॉट ए को चेंज कर दिया 10 के फॉर्म में। ठीक है, 1 - 10a, इसको अभी एलसीएम लेके करते हैं। 10a -1। ठीक है, अब इसको ऊपर ले लेते हैं। ये बाय डिवाइड है, ये अगर ऊपर जाएगा तो चेंजेस हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। 1 - 10a। ठीक है, 1 - 10a इंटू ये ऊपर आ जाएगा 10a। ठीक है, इंटू हो जाएगा ये 10a - 1। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये
इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो आगे क्या होगा। इधर ये देखो, a माइनस बी है और ये b माइनस ए है। ये यहाँ जो भी है माइनस के साथ वही चीज है, लेकिन ये आगे ये पीछे। मतलब अगर ऊपर को a माइनस बी धरेंगे, नीचे क्या है b माइनस ए है। देखो वही टर्म पहले है और पहला टर्म बाद में है, ठीक है। तो ये दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी, और इसको माइनस डाल के a माइनस बी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं माइनस फॉर्म में। तो इसको माइनस डाल के लिख सकते हैं हम इसके जैसे। तो लिख रहा हूँ 1 माइनस 10a इंटू 10a बाय माइनस डाल के इसको 1 माइनस 10a लिख दे रहा हूँ, क्योंकि b माइनस ए को लिख सकता हूँ माइनस a माइनस बी। अभी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये देखो, ठीक है। अभी देखो माइनस यहाँ बचा, ये माइनस 10a, ठीक है। माइनस ऊपर ये प्लस था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 10a का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 10a का 10 स्क्वायर, ये RHS था, यहाँ RHS था 10 स्क्वायर हो गया। तो दोनों को, इसको भी 10 स्क्वायर प्रूव कर दिए, इसको भी अलग से 10 स्क्वायर प्रूव कर दिए, तो तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तुम्हारा कमिंग एग्जाम से पहले और एक और 2 वीडियो कोशिश करेंगे कि और 5-5, 10 नंबर डिस्कस हो जाए, तो मिस मत करिएगा। थैंक यू।